Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we're going to start today is the operational amplifier. Operational amplifier. It derives its name of operational from the fact that it can perform different mathematical operations. We can perform addition, subtraction, multiplication, doing an integration, differentiation, etc. We can perform different mathematical operations, addition, subtraction, multiplication, etc., etc., integration, differentiation. So since we can perform different mathematical operations by deploying this electrical component, that is why this electrical device is called as the operational amplifier, because of different mathematical operations it can perform. And as far as the amplification is concerned, amplifier means that it can amplify the amplitude of the voltage of the current. Or you can say that it can also amplify the power. It can amplify the power of the input signal. So since it can amplify the power, voltage and control, the value को increase कर सकता है ये, ठीक है? So that is why it is called as an amplifier. Hence, operational amplifier is the name. It is a long history which you can study in Article 4.3 in your book. Normally it is available in the market in the form of the silicon chips. ICs बने होते हैं आपके पास, ठीक है? Integrated circuits होते हैं आपके पास, कुछ इस तरह के, ठीक है? ये integrated circuits हैं, इसमें मार्केट में आपको मुख्तलिफ तरीके से आपको ये मिलेंगे, ठीक है? तो ये इस फॉर्म में आपको मार्केट में readily available होते हैं. And then you simply use them, deploy your circuit to perform different electric circuit tasks. ठीक है? As far as its manufacturing is concerned, ये जो integrated circuit है, ये जो chip मैंने आपको दिखाई है, ठीक है? This chip is a complex combination of the capacitors, inductors, transistors, resistors, diodes, and several other things which are integrated together into a single silicon chip. However, for this particular course, we are not concerned about the internal physics of these operational amplifier integrated chips, integrated circuits. What we are interested more in the IV characteristics of the operational amplifier. The IV characteristics of the VI characteristics, voltage and current characteristics of the operational amplifier. As far as these amplifiers are concerned, ये जो amplifiers हैं आपके, operational जो amplifier है आपका, ये नॉर्मली होती है जी एक 5-pin डिवाइस आपके पास. बिफोर दैट इट इज एन एक्टिव डिवाइस. ये एक एक्टिव डिवाइस है, ठीक है जी? बाय एन एक्टिव डिवाइस वी मीन दैट any electrical device which requires an external power source to operate is called as an active device. इस चीज को थोड़ा सा मैं आगे जाके बाद में एक्सप्लेन करूंगा ये एक्टिव डिवाइस क्यों हम इसको बोलते हैं, ठीक है? I will explain it to you later, a little bit later. इसका जो सर्किट सिंबल है, ठीक है? जिसका जो सर्किट सिंबल है उसको यूं होगा. It's a 5-pin device. इसमें 5 pins होते हैं essentially. ये 5 pins है आपके पास, ठीक है जी? ये जो पॉजिटिव है यहाँ पर या ये जो नेगेटिव है यहाँ पर, इसका मतलब कतई तौर पे ये नहीं है. चलो मैं वो बात बताता हूँ. These are 2 inputs. ये 2 inputs हैं आपके पास, ठीक है जी? This is called as non-inverting input. This is called as inverting input. And this is your output. These are 2 inputs. ठीक है? नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्टिंग इनपुट. पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इन्वर्ट नहीं कर रहा है इनपुट को. नेगेटिव का मतलब क्या है? इट इज इन्वर्टिंग द इनपुट. दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव does not have anything related to the
पोलैरिटी, जिस तरह हम करते थे ना पैसिव साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन विद वोल्टेजेस एंड द करंट्स। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे ये इसको ये नहीं पता कि पोलैरिटी किसकी हायर है, यहाँ पे ये नहीं पता कौन सा हायर पोटेंशियल है कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल है, rather it is telling us that this is the non-inverting input because it is positive, so it is not inverting the input, and this is negative, so it is inverting the input, यानी उसको उल्टा कर रहा है, invert कर रहा है, so यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ गया। This is your output, और ये जो दो टर्मिनल्स हैं, these two terminals are called as the supply, यहाँ पे पावर सप्लाई की जाती है कनेक्ट, ठीक है जी, यहाँ पे कनेक्ट की जाती है पॉजिटिव सप्लाई और यहां पे कनेक्ट की जाती है नेगेटिव सप्लाई, ठीक है जी, ये पॉजिटिव सप्लाई और यहां पर नेगेटिव सप्लाई। नॉर्मली जब सर्किट से ड्रॉ करेंगे उसको जो आप इस एम्पलीफायर का जो शो करेंगे सर्किट सिंबल वो कुछ यूं होगा, प्लस माइनस, दैट्स इट, एंड दिस इज योर आउटपुट। ये जो पावर सप्लाई के जो इनपुट्स होते हैं ये नॉर्मली सर्किट ऐसे शो नहीं करते, दे आर ऑलवेज देयर, अगर ये कनेक्टेड नहीं होंगे तो आपका सर्किट परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, आपका जो सर्किट है वो कभी भी परफॉर्म नहीं करेगा आपके पास, ठीक है जी। तो ये तो होते हैं, ठीक है जी, लेकिन हम इनको सर्किट में नॉर्मली शो नहीं करते पॉजिटिव स्क्वायर नेगेटिव सप्लाई, ठीक है जी, हम सर्किट में सिर्फ उसका इस तरह ही शो करते हैं, ठीक हो गया जी। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है जी, यहां जो सप्लाई लगती है इसको हम कहते हैं जी प्लस वीसीसी और इसको हम बोलते हैं माइनस वीसीसी, प्लस वीसीसी एंड माइनस वीसीसी, ठीक है, एंड दे हैव सेम एम्पलीट्यूड, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है नॉर्मली सेम होता है आपका, जनरली दे हैव सेम एम्पलीट्यूड, प्लस वीसीसी एंड माइनस वीसीसी। ये प्लस वीसीसी का क्या मतलब है, माइनस वीसीसी का क्या मतलब है, ये मैं आपको कंप्लीट सर्किट डायग्राम शो करता हूं तो उसके अंदर आपको ये वाज़ेह हो जाएगा कि प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी का मतलब क्या होता है। ये आपके पास आ गया जी आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर, ठीक है, और प्लस माइनस वीसीसी, सो यू कैन सी दैट यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, कनेक्ट, आई एम कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू दिस पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड एज द प्लस वीसीसी, दिस इज कॉल्ड एज द प्लस वीसीसी। एंड दिस इज माइनस वीसीसी, यू क्लियरली सी दैट यहां पे एक और बैटरी अलग लगी है, ये दो अलग अलग पावर सप्लाईज हैं, ये एक पावर सप्लाई नहीं है, rather you have two different power supplies, ठीक है जी, and this is your non-inverting input, this is your inverting input, ठीक है, और यहां पर जो वोल्टेज है वो क्या है, VP, यहां पर जो वोल्टेज है वो क्या है जी, VP, ये जो नीचे जो आपका पॉइंट है ये सारा क्या है, ये ग्राउंडेड है, दिस एंटायर wire is grounded, it is connected to the ground, so potential at this point, potential at the inverting input with respect to the ground is equal to VP, ठीक है, and over here the potential will be called as VN, so potential at the inverting input with respect to the reference ground is called as VN, is called as VN। अब ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव लगाए हैं ये बेसिकली शो कर रहे हैं कि पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज हायर एज कम्पेयर टू द ग्राउंड बाय वीपी, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज हायर एज कम्पेयर टू द ग्राउंड पॉइंट बाय वीएन, एंड ओवर हियर वी हैव आवर आउटपुट, ठीक है जी। सो एवरी वोल्टेज इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस ग्राउंड, जो भी एक रेफरेंस पॉइंट है कि ग्राउंड पॉइंट आपने सिलेक्ट किया आर्बिट्रेरीली, आपने जितने भी वोल्टेजेस हैं आपने उसके रिस्पेक्ट से डिफाइन करने हैं, ठीक हो गया जी, यू आर गोइंग टू डिफाइन द वोल्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर
ग्राउंड पॉइंट। ये तो कंप्लीट सर्किट डायग्राम है आपके पास आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर कि आप उसको किस तरह सप्लाईज कनेक्ट करेंगे। यहां पे आपने अपना इनपुट सिग्नल देना, ये सप्लाईज हैं, दीज सप्लाईज आर नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये ऑपरेट नहीं करेगा। आप इनपुट पर जो मर्जी सिग्नल दें आपका आउटपुट जीरो रहेगा। आप यहां पे इनपुट जो मर्जी दे दें आपका आउटपुट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये VCC कनेक्ट करना जरूरी है आपके पास। इस वजह से हम इसको बोलते हैं क्या है जी, एक एक्टिव डिवाइस है, जिसका मैंने आपको पहले बोला था इट इज एन एक्टिव डिवाइस एंड आई विल कम टू दैट लेटर ऑन। अगर आप ये प्लस VCC और माइनस VCC कनेक्ट नहीं करेंगे, सप्लाई कनेक्ट नहीं करेंगे, तब यहां पे बेशक जितना मर्जी इनपुट दे दें आपके पास आउटपुट की वैल्यू जीरो ही रहेगी। ठीक है जी, इन्फिनिट आउटपुट भी आ जाए, इनपुट भी आप दे दें यहाँ पे दोनों टर्मिनल्स के ऊपर, फिर भी आउटपुट आपस क्या रहेगा, जीरो रहेगा। These supplies are necessary. And if you remember, as far as your resistors were concerned, अगर आपके पास ये रेजिस्टर है, ठीक है जी, अगर आपने यहाँ पर इसको इनपुट पे वोल्टेज दे दी अगर आपने, ठीक है, प्लस माइनस V in, अगर आप यहाँ पर इनपुट अपना कनेक्ट करते हैं तो फौरन ही आपके पास यहाँ पर करंट फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, जैसे इनपुट कनेक्ट किया आपके पास करंट फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपने इनपुट कनेक्ट कर रहे हैं तो आउटपुट में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। आउटपुट जो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। कब करंट फ्लो करेगा, जब आप ये वाली पावर सप्लाईज ऑन करेंगे। इसमें कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं चाहिए रेजिस्टर को करंट फ्लो करवाने के लिए। इनपुट वोल्टेज लगाई और उसमें से करंट फ्लो करे। सो ये एक्टिव डिवाइस नहीं, बिल्कुल ये एक्टिव डिवाइस है क्योंकि इसको यहाँ पे ये पावर सप्लाईज नेसेसरी है इसके लिए। यहाँ पे जो करंट जाएगा दैट विल बी IP and this current is IN, IP and IN, और ये जो आपका करंट है this is I0 आउटपुट करंट। यहां पे जो करंट आ रही है this is प्लस IC, और यहां से जो करंट जा रही है इसको हम क्या बोलते हैं जी, माइनस IC। ठीक है जी, सॉरी प्लस IC, इस तरह IC प्लस एंड IC माइनस। ठीक है जी, सो ये बेसिकली आपके पास एक कंप्लीट डायग्राम है कि किस तरह इसमें करंट फ्लो करती है। इसमें कौन कौन सी करंट फ्लो कर रही है। यहां से दो इनपुट करंट्स, जहां पे दो इनपुट्स हैं, ये दो सप्लाई करंट्स IC नेगेटिव IC पॉजिटिव, और यहाँ पास आउटपुट करंट I0। यहाँ पे कोई भी लोड कनेक्ट करेंगे ये करंट उसकी तरफ फ्लो करेगी आपके पास। नॉर्मली सर्किट जब डायग्राम आप शो करेंगे, जब आप एक कॉम्प्लेक्स सर्किट जब आप ड्रॉ करेंगे उसके अंदर हम ये पावर सप्लाईज को शो नहीं करते। हम ये जो पावर सप्लाईज हैं इनको शो नहीं करते। रादर व्हाट वी डू इज दैट हम सर्किट में इसको नॉर्मली इस तरह शो करते हैं एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को, प्लस माइनस I0, सॉरी IP IN, और यहां पर हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं और यहां पर हम इस तरह शो कर देते हैं जी, ये हमारे पास एक ग्राउंड है। ठीक है जी, एंड ओवर हियर वी हैव आउटपुट वोल्टेज। नॉर्मली हम इसको सर्किट इस तरह सर्किट डायग्राम में शो करते हैं। ठीक है जी, एंड दिस इज VP एंड दिस इज VN, दिस इज VP एंड दिस इज VN। ठीक है, नॉर्मली हम सर्किट में इसको इस तरह शो करेंगे हमेशा। ठीक है जी, ये जितनी भी वोल्टेजेस हैं दे आर डिफाइंड टू सम विद रिस्पेक्ट टू सम ग्राउंड पॉइंट, लेकिन वर्चुअली इन आवर माइंड्स वी नीड टू नो कि एक्चुअली ये सारा काम हो रहा है। यहाँ पे ये यहाँ पे इस तरह लगे हुए हैं, ये भी कनेक्टेड है, यहाँ पे ग्राउंड पॉइंट पूरा ये सारे कनेक्टेड है आपके पास। ठीक है जी, जब इनपुट आएगा दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वो इन दो टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट होगा। जहां पे जब इनपुट आएगा इन दो टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट होगा। जब आउटपुट हमने लोड लगाना तो इन दो टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड होगा आपके पास। ठीक है, लेकिन कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफी बड़े बड़े सर्किट्स होंगे आपके पास, उसको हम शॉर्ट एंड करके हम उसको इस तरह शो करते हैं। हम ये नॉर्मली ग्राउंड भी शो नहीं करते हैं, हमारे ज़हन के अंदर होना चाहिए कि दिस VP इज पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड पॉइंट, दिस VN इज द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड पॉइंट, and this is IP and this is IN, this is I0 and this V0 is with respect to some reference point. ठीक है जी, अब we know that कि Kirchhoff's current law, ठीक है जी, तो Kirchhoff's current law जो है एप्लीकेबल वापस सारी डिवाइसेस के ऊपर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर आपका Kirchhoff's current law जो है वो हर जगह पे एप्लीकेबल है आपके पास। तो यहाँ पे भी आपको KCL
आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर को भी केसीएल एप्लीकेबल है, ठीक है जी, आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर को भी केसीएल एप्लीकेबल है। अगर आप यहां पर केसीएल अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो आपके पास क्या आएगा, ये आईपी और आईएन क्या है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर एंटर हो रहे हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आईपी माइनस आईएन, वो दोनों करंट एंटर हो रही है। ये आईसी पॉजिटिव और आईसी नेगेटिव ये भी एंटर हो रही है, देखें ये यहां से एंटर हो रही है, यहां से एंटर, तो ये भी नेगेटिव ले लिया हमने, सो आईसी पॉजिटिव माइनस आईसी नेगेटिव। लेकिन आई नॉट को देखें, आई नॉट इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखें कितने ब्रांचेस हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 5 करंट्स हमने कंसीडर करनी है। इस ब्रांच में करंट एंटर हो रही है, ये भी एंटर हो रही है, ये भी करंट एंटर हो रही है, ये भी करंट एंटर हो रही है, ये करंट लीव कर रही है। तो प्लस आई नॉट इज इक्वल टू 0। नेगेटिव टर्म्स आप सही लेकर राइट हैंड साइड पे ले जाते, आपको क्या आएगा, आई नॉट इज इक्वल टू आई पी प्लस आई एन प्लस आई सी पॉजिटिव प्लस आई सी नेगेटिव, ठीक है जी। अब आप इसको पर अपना केसीएल अप्लाई करें तो इसमें कितनी ब्रांचेस नजर आएंगी, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो अगर आप यहां पे केसीएल अप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, आपके पास क्या आएगा, यू विल ऑब्टेन आईपी और आईएन एंटर हो रहे हैं, सो माइनस आईपी माइनस आईएन एंड आई नॉट इज लीविंग, so plus I naught is equal to 0, or we can say that I naught is equal to IP plus IN, ठीक, इसी तरह ना 1 2 और 3 ब्रांचेस नजर आ रही है ना आपको, so I naught is equal to IP plus IN, IP plus IN. This is wrong. Why? Because this is not the complete circuit diagram for the operational amplifier. Operational amplifier क्या है, वो इस तरह आपके पास, उसमें 5 पिन्स हैं आपसे, 1 2 3 4 और 5। ये तो हमने शॉर्ट हैंड, हमने अपनी कन्वीनियंस एस्थेटिक्स के लिए हमने इसको इस तरह शो किया विद ओनली 3 पिन्स, ताकि हमारा जो सर्किट है वो जंगल अपना हो जाए, उसका गुड मुड सुना हो जाए, ज्यादा चीज में गुड मुड ना हो जाए, इसलिए हमने उसको इस तरह शो किया, ठीक है। अदरवाइज वहां पर 5 करंट्स होनी चाहिए आपके पास। और अगर एक आप आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की बात करें, अगर हम आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की बात करें, तो ये जो दोनों चीजें हैं, दे आर अप्रोक्सीमेटली नहीं, दे आर इक्वल टू 0 for an operational amplifier, these are equal to 0, suppose I naught के आगे I naught will be equal to 0 for an ideal amplifier। अगर हम ये वाली कंसीडर करें, अगर हम ये वाली क्वेश्चन कंसीडर करें, तो I पर IN तो आइडियल एम्पलीफायर में 0 होता है आपके पास, तब आउटपुट करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब आउटपुट ही 0 हो गया तो आउटपुट पावर क्या होगी फिर आपके पास, I naught square R is equal to 0, ठीक है जी। तो ये गलत है, ठीक है, असल इक्वेशन ये आपके पास, ये दोनों बेशक 0 हैं, ये दोनों बेशक इक्वल टू 0 है फॉर द आइडियल एम्पलीफायर, लेकिन आउटपुट करंट कहां से आती है, वो सप्लाई से आती है असल में, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको बोला, मैं अगर इनपुट हूं, मैं वीपी हूं, ठीक है जी, मैं इनपुट हूं और मैं यहां पे लगा, ठीक है जी, और आउटपुट के ऊपर मेरी पावर इंक्रीज हो गई, ठीक है जी, मैं यहां पर कनेक्ट हुआ मेरे 2 वोल्ट से, ठीक है जी, और आउटपुट के ऊपर आ गया 15 वोल्ट आ गया मेरे पास, ठीक है जी। तो हमें क्या पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये एनर्जी क्रिएट तो नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, ये जो कोई भी चीज है। तो बेसिकली एनर्जी कहां से आती है, वो यहां से सप्लायर्स की तरफ से आती है। मैं अगर इनपुट हूं, अगर मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है जी, तो मेरे लिए तो मेरी पावर एम्पलीफाई हो गई आउटपुट के ऊपर, मैं 2 वोल्ट का आउटपुट में 15 वोल्ट आ गया, उसकी वजह से मेरी पावर एम्पलीफाई हो गई, ठीक है। तो मुझे तो लगेगा कि यहाँ पे एक मिरेकल हो रहा है, एनर्जी क्रिएट हो रही है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी एंड की तरफ, मैं एज ए इनपुट सिर्फ अपनी आउटपुट की तरफ देख रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं देख रहा कि वो एनर्जी कहां से एनहांस हो रही है। वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो वो एनर्जी ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम दी सप्लाईज, वो सप्लाई से एनर्जी ड्रॉ करके आउटपुट को सप्लाई कर देता है, ठीक है। लेकिन मैं इनपुट हो, मुझे लगता है शायद यहां पे आउटपुट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। और मैं कहता हूं ये वाह तो एम्पलीफायर है जी, तो मुझे इसने पावर एम्पलीफाई कर दी है, ठीक है। ये जादू तो कर रहा है, लेकिन इट इज नॉट क्रिएटिंग पावर, इट इज सप्लाइंग द पावर फ्रॉम द सप्लायर्स टू द आउटपुट। वो इसके मुताबिक, वीपी के मुताबिक यहां पे आउटपुट में देगा, लेकिन वो एनर्जी कहां से देगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है एम्पलीफिकेशन की, वो इन सप्लायर्स के अंदर से आएगी आपके पास,
ठीक है जी। सो ये बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपके लिए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसकी टोटल पिन्स कितनी होती हैं, 5 पिन्स हैं। सर्किट में इसको इस तरह शो करेंगे, इस तरह शो करेंगे बेसिकली VP, VN, IP, IN, I0 and V0. ये VP और VN and V0, these three voltages are defined with respect to the reference point. Positive का मतलब क्या है? We are assuming that VP is at a higher potential as compared to the ground, VN is at a higher potential as compared to the ground, V0 is at a higher potential as compared to the ground. ठीक है जी। सो बेसिकली ये आपका इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आ गया आपके पास, ठीक हो गया जी।